Yes, students. Today we have to discuss our second phylum, that is Coelenterata, or also known as Cnidaria. Yesterday we have studied about phylum Porifera, and we have seen the three characters. That one is porous body, second is canal system, and third is a choanocyte cells, also known as collar cells. So that means Porifera is the simplest type of a group of animal है. Now next phylum is Coelenterata, or also known as Cnidaria. Now this word comes coelen. Coelen means cavity, terata means bearing. So they are with a gastrovascular cavity. Gastro word that means we are talking about stomach or digestive system. तो एक cavity होती है. And Cnidaria word comes from, they are having a special type of cell. They are known as cnidoblast, or also known as cnidocyte, or known as stinging cell, or nematocyte. So that means there are four different name of single type of cell. चाहे cnidoblast कह दो, चाहे cnidocyte कह दो, cnidocyte ध्यान रखना है और nematocyte ध्यान रखना है. So cnidoblast, cnidocyte, stinging cell और nematocyte. तो ये Cnidaria वर्ड आया इस cnidocyte cell से. Okay. Now talk about general characters. That means if we talk about habitat, then habitat is aquatic and mainly है marine. Mainly क्या है? Marine. Freshwater also some animal. Then if we talk about symmetry, then here symmetry is radial. Radial symmetry means we can divide the body in two parts from any plane. किसी भी plane से हम दो parts में body को क्या कर सकते हैं? Divide कर सकते हैं. The level of organization here, the level of organization is a tissue level. If you remember कि Porifera में ये था cellular level, तो इससे ये थोड़ा सा advanced character आ गया. If we talk about germ layer, तो germ layer ये वापस वही होगा डिप्लोब्लास्ट. तो डिप्लोब्लास्टिक का that means organ system नहीं होगा. If we talk about digestive system and digestion, then दो टर्म है यहाँ पर. Digestive system is incomplete. Incomplete means only mouth is there, or we can say single opening is there for ingestion as well as ejection. तो incomplete digestive system Porifera में नहीं था. If we talk about digestion, तो digestion intracellular भी है और एक्स्ट्रा सेलुलर भी है. इंट्रासेलुलर किसमें था? पोरीफेरा में. तो पोरीफेरा से अगर यहाँ तक की बात करें तो पोरीफेरा और Coelenterata में क्या डिफरेंस आया? सिमेट्री रेडियल आ गई और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो आया. चाहिए इनकम्प्लीट हो, आया तो सही. इफ यू टॉक अबाउट स्केलेटन, स्केलेटन हियर स्केलेटन इज एक्सो स्केलेटन एंड फॉर्म्ड बाय ए ग्रुप ऑफ एनिमल होते हैं इसी के. दे आर नोन एज कोरल्स. उनको क्या बोलते हैं हम? कोरल्स बोलते हैं. ग्रेट बैरियर रीफ और ऐसे आपने सुना होगा. कोरल रीफ इन एसएस में कहीं पढ़ा होगा आपने. कोरल्स होते हैं एंड दे सीक्रेट एक्सोस्केलेटन इन द फॉर्म ऑफ, और वी कैन से मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. कैल्शियम कार्बोनेट. ये जो कैल्शियम वर्ड है ये इवोल्यूशन के साथ साथ चलता है स्केलेटन के. अगर हम हमारी बोन्स की बात करें तो भी हमें भी क्या होता है? कैल्शियम होता है. तो ये स्केलेटन जहां पर आए तो कैल्शियम वर्ड वहां पर हमें मिलेगा. इफ यू टॉक अबाउट सेक्सेस, देन सेक्सेस आर सेपरेट. सेपरेट मीन्स दे आर यूनिसेक्सुअल, बट सम hermaphrodite, that mean bisexual. If you talk about fertilization, then fertilization is external. If you talk about development, then development is indirect. Indirect mean यहाँ पर कौन सी स्टेज आएगी? लार्वल स्टेज आएगी. एंड लार्वा इज मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट फ्रॉम द अडल्ट. ओके. तो डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल. नाउ two new characters are here which were not present in a Porifera specifically. एक तो नर्वस सिस्टम एंड सेकंड है सेंस ऑर्गन. तो यहाँ पर जो नर्वस सिस्टम है दैट इज मेड अप ऑफ ओनली नर्व
सेल्स। तो नर्व सेल आपस में क्या होती है, वो इंटर कनेक्टेड होती है। ओके, इससे पहले दैट मीन्स इन पोरीफेरा नर्व सेल्स नहीं थी, यहाँ पर क्या आई, नर्व सेल आई। तो ये इसका वो स्पेसिफिक और एडवांस कैरेक्टर है जो पोरीफेरा में नहीं था। तो नर्व सेल का क्या काम होगा, वही कोऑर्डिनेशन का। ओके, तो दैट मीन्स आफ्टर दैट सेंस ऑर्गन दे आर हैविंग द सेंस ऑर्गन एंड द सेंस ऑर्गन इज नोन एज स्टेटोसिस्ट, known as statocyst, but this statocyst is found in medusa form. medusa form, ये medusa form क्या है, they are with the two basic form of we can say life cycle की बात करें, entire we can say उसमें Coelenterata की बात करें, दो तरह की फॉर्म होती है we can say animals की, one is known as polyp and other is known as मेड्यूसा। अगर आपको याद हो तो हमने प्लांट्स में पढ़ा था, एक तो था गेमेटोफाइट और एक था स्पोरोफाइट। उसी तरह से इनमें भी दैट मीन्स दो तरह की बॉडी मिलती है, एक पॉलिप है, एक मेड्यूसा है। कोई ओनली मेड्यूसा हो सकता है, कोई ओनली पॉलिप हो सकता है, कोई दोनों हो सकता है। तो दैट मीन्स हम आगे डिस्कस करेंगे उसके बारे में। सो कम बैक टू द बेसिक Coelenterata, दैट मीन्स गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। नाइडेरिया वर्ड कहां से आया, नाइडोब्लास्ट और नाइडोसाइट सेल से ऑल्सो नोन एज स्टिंगिंग सेल, स्टिंगिंग मतलब जैसे कांटा हो। ओके, देन नेमेटोसाइट। तो हैबिटेट क्या है, एक्वाटिक है, मेनली मरीन है, सिमेट्री रेडियल है, देन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल है। ये इसमें क्या आ गया, एडवांस आ गया। मैं यहाँ पर ऐसे स्टार लगा रहा हूँ जो एडवांस कैरेक्टर है, जैसे तो ये स्टार आ गया। जर्म लेयर वर्ड डिप्लोब्लास्टिक है। डाइजेस्टिव सिस्टम आया, वो क्या इसमें इनकम्प्लीट आया, और एक्स्ट्रा सेलुलर भी आया साथ में, इंट्रा भी है, एक्स्ट्रा भी है। तो एक्स्ट्रा उसमें नहीं था। इफ यू टॉक अबाउट स्केलेटन, तो उसमें एंडोथाइस में क्या गया, एक्सो आ गया। इसको हम अलग से कंसीडर नहीं करेंगे। सेक्सेस सेपरेट और सम हर्माफ्रोडाइट है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, बट यहाँ पर दोनों ही कैरेक्टर आए, दैट इज एक तो नर्व सेल और दूसरा सेंस ऑर्गन। ओके, तो हमारे अंदर हम बात करें तो हमारे पास ब्रेन है, डिफरेंट 5 सेंस ऑर्गन्स है। तो दैट मीन्स द वेरी फर्स्ट वी कैन से ग्रुप ऑफ एनिमल जिसमें नर्व सेल और सेंस ऑर्गन आए, तो दैट इज Coelenterata। ओके, तो ये दो कैरेक्टर्स में क्या आगे एडवांस आगे, एक डाइजेस्टिव सिस्टम का आया और एक टिश्यू लेवल का आया। ओके, नाउ वी हैव टू मूव द वी कैन से स्पेसिफिक अदर कैरेक्टर और स्ट्रक्चर ऑफ दिस Coelenterata। ये निडोब्लास्ट सेल कैसी होती है, इस पॉलिप मेड्यूसा का क्या मतलब है। ओके, सो दिस इज अबाउट द ओनली जनरल कैरेक्टर्स। नाउ मूव टू स्ट्रक्चर ऑफ Coelenterata।